Hello everyone. Good evening. I hope all are doing good. Voice is audible. Is voice audible to all? Okay. So let's start our session. Let me finish the discussions which are to be pending, and after that I will take your queries. Okay. Yeah. So some pending issues. I already told ki this week entirely whatever the pending things are that we will try to complete it as fast as possible. So first let me discuss all those things, and once that discussion is done, after that we'll start our class, because this is also very important, because some things go line by line, so we have to follow that. Okay. So number one is that July 24 stipend. In this, as it was there that 8 to 10th August, all had to get it. But as you all know that now your salary or stipend, whatever you say, it has to go from the Trader Yodha current account. It has not to go from my savings account, right? So current account is already in the opening process. It got bit delayed. That's why, and I was not available for the entire week and all for my mother thing and all that. That was the main thing. I was not even in the bank. So I will now go bank tomorrow, and whatever the documents and signature wherever they require, I will do it. And then they will open the account, and after everything is ready, sheet is ready, each and everything is ready. And after that, your stipend will be credited. So I am hoping that before Raksha Bandhan, it is on 19th, 15th to 18th, anyhow, all will get their stipend. And all those who have there are some members, some staff members, like bond amount was rupees 1 lakhs, and someone sent like 50K, someone sent like 40, like 45K, like somewhere there whose necessity was very important, and we considered their request. In that case, your stipend will be adjusted in your bond amount for July 2024. Okay. First information. We are trying to get it anyhow by 15 to 8 means by anyhow by 15 to 18th August, it will be credited in all the accounts. It will directly go in your account. After that, you will get your salary stipend slip. That will be for your record in your whatever mail IDs, official mail IDs. Okay. So just due to the last incident that has happened at my home, my mother was seriously sick. You all know that. So for that, for 5 7 days, I was not even able to go anywhere or do anything. That is the main reason this delay has happened. But I'm trying my best by 15th to 18th, max to max by 20th. Whoever are left, all get their stipend by 20th of August. And from next month onwards, it will be on time, like 8 to 10th August every month, like that. Okay. First important thing. Second important thing, as all have sent the bond amount in my account, okay, in my personal account. At that time, our savings account was not opened. Sorry, current account was not opened. So all have sent the bond amount in my savings account. So what I will do, I will transfer after this stipend thing is done. Okay, I will transfer all the bond amounts from my saving account back to your account, and from there you will transfer it in Trader Yodha account. This is for account purposes. It is very, very necessary. Actually, our CA and our auditor and all those have asked this to be done on priority basis. Okay, so it has to be done. That's why after that you will get your salary slip. Like further, we are planning to get your health insurance done, like your TDS for the salary, the tax which will be deducted at source. All those things, all has to be routed from the current account.
So this is very important. So all the bond amount, whatever you paid in my savings account, it will be reversed back. Like of course, everyone will get rupees 1 lakhs, right? Because all those who have not paid the full amount, their balance amount will be adjusted from the first month of the stipend. So obviously, everyone will be getting back their 1 lakhs in their account. And after that, it's on your honesty whether you, I don't know. So if you are, then again you will back credit back it in Trader Yodha account. Okay, and then further after that things will settle down. Okay, then bond will be officially sent in the company account, like Trader Yodha account, it will be there. So these two tasks are very very important, that has to be done at any cost. So first, your stipend for this training stipend which is going, I have named it a stipend, and in a stipend no deduction is going on. Okay, stipend directly 45K you are getting back in your account, but salary, once it is fixed, one day everything will be done after training and all, that there will be TDS, of course, tax deducted at source, which you can claim. Like you will be getting Form 16 from our side, because we will be deducting TDS at source. So we will be giving you Form 16. From there, you can directly file your tax. Okay, and you can claim your TDS also. And whatever the services will be there, that GST part will be there. But in salary, no GST is there. Only TDS will be there. Tax deduction at source will be there. Rest, whatever your benefits which we have discussed, whatever there will be no deduction from it. The deduction from will be on your gross pay. Whatever it will be, like suppose someone has got the gross pay of 1.5 lakhs, then TDS will be there at this. And whatever the percentage is there on TDS, I don't know it. Those CA and auditor, it is their task, they will know. And from there onwards, directly from Trader Yodha account, you will get your salary. This is the first thing. Second thing, all the bond amount which you have paid me in my account, after this stipend thing is settled, everyone will get their name. Once the payment is done, stipend payment is done, we have got all the persons list with us. We have got all the members list with us, and we will send the list there, like your name and stipend received for July 2024, like that. Okay, so there your name and salary will be like that. All our staff, all by list, it will be created. Once it is completed, then it will be done. Okay, first thing. Second thing, that bond thing, I hope you understood it. Okay, let us complete the salary part. Then once the amount is transferred to everyone from my savings account, then after that you will again reverse it back in the Trader Yodha's current account, I will tell. Then after that, that bond part will be taken care of, because on that bond form, remember you mentioned the mention was savings account of mine. Okay, but it has to be changed now. Now it has to go in the current account. So once, let me do the reversal, and after that bond format may, that change will be there, where the current account was mentioned, savings account was mentioned, it will be current account, and in that you will transfer. And then that bond amount means a little bit pain for you also, that you will again have to fill that bond form, and again you have to send it to me. That is the main thing. Okay, so this thing, I thought, okay, from salary account, savings account, I have done it, it's fine, because anyway I am filing the tax. But as everything you have sent is related to Trader Yodha, so all thing has to be done on legal basis. In future, it can create a problem for me also, that if the bond was there or training fee, whatever it was there, why I got it in my saving account, why I didn't got it in my current account, that will be the problem. So for that thing, we have to do this, that reversal. We have to do the reversal. Okay, so I hope all understood this. Now, second thing, let me finish this. After that, we will have the discussion. Whatever the doubt you have, we will do it. Okay. Second, the thing, and the thing is that what I wanted to tell, I forgot. Okay, I will remember in the procedure. When I am telling it, then again, automatically I will get to know it. Okay. So first thing, I hope it is clear for everyone. Okay. Like this, July 2024 stipend, it will be added with like June also. Like from June, you all have joined, na, right? So June stipend will be also there. Okay, June stipend will be
also there, like 5-6 days is there, na, it will be added. Okay. First thing, July 2024 stipend for all those who are with us as a staff member, it will be credited by 15th to 18th of August. If anyone left, it will be, final day will be 20th of August. Anyhow, it has to be done till date. Okay. In this second information, all those, you all know, joining Trader Yoddha bond amount was rupees 1 lakhs. So whoever has paid like 50K, 60K, and some amount has been left, that will be deducted from your July 2024 stipend. Okay. And it will be settled. So your final bond amount will be completed to 1 lakhs. In case, third thing, I am telling that whatever the bond amount, जो भी आपने bond amount pay किया है, ठीक है, that has been done in my savings account. Okay. Which can land me in legal problem after some time, because bond amount, or if I have collected the money on the name of Trader Yoddha, then it has to go in the Trader Yoddha account, not my savings account. So for that, I will reverse all the transactions that has been done from your account to my account. Already I have got your account details. And after that, you will again send back it to Trader Yoddha account from your account. Okay. Trader Yoddha account, you will have to send it. Okay. Like this will be the thing. Then after that, again, once this is done, you send it. Then after that, that bond form, you all remember, in bond form, my saving account was mentioned. Okay. My saving account was mentioned. So it has to be changed. This is the later part. This is the latter part. We don't have to go in this. First, this has to finish. If once this salary credit, stipend credit part is finished, after that we will talk about this bond amount thing. But just keep in mind that it has to be reversed from my account to your account. Then it has to go from your account to Trader Yoddha account. Okay. And what will happen? Suppose after the tests and all performances and all, like suppose there are 168. I think that around 25, 30 or 40 peoples will be disqualified after this. I am taking this as an assumption. Like though all those who will get disqualified, their rupees 1 lakh rupees will be automatically directly transferred back in their bank account, and that bond will be fortified. Okay, that bond will be, those who will get disqualified or whatever things, you will get the stipend from us. And if you get disqualified, then in that case, rupees 1 lakh rupees will be automatically credited back in your account. You will have an abundance of knowledge, notes, PDF, recordings. Watch them. Try next time whenever the vacancy comes. Better be prepared for that. Okay, so that is the thing. So I hope this thing is clear for all, and all those who have switched from like my our earlier group, from there to Trader Yoddha, we have a separate meeting for all of them by today, 9:15 or 9:30. Join there. We will discuss each and everything, and we will complete the Trader Yoddha joining process as soon as possible. And after that, your stipend will be credited back in your account. Okay. So I hope this stipend thing is completely clear for all. Now, second thing. Okay, sorry. Screen is not visible to anyone, na? Now I think screen is visible. I missed it, sorry. But all understood from the voice? It is clear from by all, like voice has, I have already cleared with my voice. आवाज से समझ में आ गई ना सब लोगों को बात? फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा ना? चलो एक बार we will repeat it on the screen, okay? I am just pausing the chat box. Once we are finished on all the discussions, आपके जो भी डाउट होंगे एकदम, उसको आप आराम से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, एंड फिर हम उसको क्लियर करेंगे. ठीक है, चाहे आज की क्लास पूरी उसमें निकल जाए, इट डजेंट मैटर, बट वी हैव टू क्लियर एवरीथिंग. ठीक है, चलिए. सो ओके, मैं 5 मिनट लूंगा, बस एक बार फिर से इस चीज को समझा देता हूँ. अदरवाइज दोज हु है क्लास रिलेटेड भी डाउट है वो भी पूछिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं. पहले ये जो बेनिफिट, जो ये जो सारी चीजें हैं, उसको पहले हम लोग एक बार वो कर लेते हैं. ठीक है, ये भी जरूरी है ना? इसको ऑन प्रायोरिटी बेसिस सॉल्व करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
हाँ, तो आज हम लोग म्यूचुअल डिस्कशन पे हैं, क्योंकि स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, तो अगेन नाउ इट इज शोइंग। म्यूचुअल डिस्कशन पे हैं। वॉइस तो क्लियर है ना? वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है ना? वॉइस इज क्लियर? ओके। ओके, अगर वॉइस में दिक्कत आएगी तो फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर देना। फिर मैं वहां से देख के फिर वॉइस को सॉल्व करूंगा, ठीक है? अभी कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स चलता रहता है ना, तो फिर इट डिस्ट्रैक्ट्स, और उसकी वजह से फिर अब मैसेज का रिप्लाई दो या काम करो, वो चीज़ हो जाती है, इसीलिए चैट बॉक्स बंद कर दे रहा हूँ। अगर आपको वॉइस नहीं आए या स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही हो, मुझे बता दीजिएगा। अभी स्क्रीन जैसे कुछ लोगों ने अभी शेयर किया, सर आप सिर्फ बोल रहे हो वो सुनाई दे रहा है, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे समझ आ गया कि मैंने स्क्रीन शेयर करना ही भूल गया था। ठीक है, टुडे म्यूचुअल डिस्कशन। तो in that first we are discussing about July 2024 stipend. Its original credit date was 8th to 10th of August. Okay, but as you all know, past पिछले 7-8 days has been very difficult for me also, as my mother was very seriously ill. She was admitted, and due to that I was not able to go to bank and other things what wherever for the current account opening. That was आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम, मुझे समय ही नहीं मिल रहा था कि मैं ये सारी चीजें फिर कर पाऊँ। तो नाउ सी हैज रिटर्न, एवरीथिंग हैज सेटल्ड, एवरीथिंग इज वेल। बस एक बारिश ने परेशान कर रखा है। रेन इज लाइक हेल, मतलब इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, साउदर्न स्टेट्स फेल हो गए हैं इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है, उधर भी अलग ही लेवल की बारिश है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट अब करंट अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली, अब देखिए ना इस वीक में इतनी सारी छुट्टियां, 15th को ऑलरेडी एक 15 अगस्त की छुट्टी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि 16th से लेके 18th अगस्त तक एनी हाउ आपका जो जुलाई 2024 का स्टाइपेंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। लेटेस्ट जो भी बचे कुचे हो, कुछ भी हो, 20th of August तक सब लोग सेटल हो जाए। एक ही दिन में सबका जाएगा, जाएगा तो ये नहीं कि 10 का आज 10 का कल जाएगा, एक ही शीट से पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो लेट सेट जो भी हो, बाई 20th of August सब लोगों को उनका स्टाइपेंड, मेरी कोशिश है कि रक्षाबंधन से पहले सारे लोगों को उनके स्टाइपेंड्स पहुंच जाए। 19th इज रक्षाबंधन, तो उससे मैं पहले मैं चाहता हूं दिस थिंग इज टू बी डन फर्स्ट थिंग। ओके, डिले मैंने बता दिया, जो डिले है वो थोड़ा सा, और फिर बाय नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स इट आवर स्टाइपेंड आवर सैलरी डेट इज फिक्स्ड 8 to 10th of every month। ठीक है, इट इज फिक्स्ड। उसी के हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल्स, आपके ईएमआईज, आपके एक्सपेंसेस जो भी हैं उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, प्लीज डोंट मैसेज टीम, सर मेरा स्टाइपेंड क्लियर क्रेडिट कर दो, माय ईएमआई इज पेंडिंग। यार दिस थिंग्स नॉट फील वायलेबल वायबल ना। कुछ लोग हैं जो ऐसे मैसेज करते हैं, सर मुझे रेंट देना है, मेरा स्टाइपेंड नहीं आया अभी तक। भाई जॉब कर रहे हो यार, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी दे रखा है कि रेंट इंटरेस्ट नहीं आया उसके चक्कर में फिर। ठीक है, तो एज पर दैट प्लीज मैनेज योर, ये अच्छा नहीं लगता फिर, है ना? एंड आई डोंट ट्रीट यू एज एन एम्प्लॉय, मैं सबको अपने भाई बहन की तरह आई सी इट। सो थोड़ा सा अपना एथिक्स भी थोड़ा सा वो होना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट। सेकेंड थिंग, जो भी अब ये सारी चीजें रूट हो रही है ट्रेडर योद्धा के अकाउंट से, बिकॉज वी ऑल आर एसोसिएटेड विथ ट्रेडर योद्धा। ठीक है, तो ट्रेडर योद्धा के करंट अकाउंट से सारी चीजें होनी है। ठीक है, अब मुझसे एक गलती ये हो गई है पीछे, जो हमने बॉन्ड साइन किया है, उसमें जो अमाउंट है, जो बॉन्ड अमाउंट है, जो आप लोगों ने मुझे जो भेजा है, दैट इज कंप्लीटली रिफंडेबल। 1 लाख के 1 लाख वापस आपको जाने हैं। दिस वॉज टू बी डन इन ट्रेडर योद्धा अकाउंट, करंट अकाउंट में होना था, बट उस टाइम पे ये ओपन नहीं था एंड नए चीजें थी, हमें जल्दी में सब कुछ शुरू करना था। मैंने ये सारा जो बॉन्ड अमाउंट है वो अपने सेविंग्स अकाउंट में मंगा लिया। दैट कैन लैंड मी इन अ प्रॉब्लम, दैट इफ ऑल द थिंग्स, क्योंकि वर्क वाज फॉर ट्रेडर योद्धा, देन वाई इन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये मतलब कल को फ्यूचर में एवरीथिंग हैज टू बी टोटली क्रिस्टल क्लियर सब लोगों के लिए। तो अभी जो भी आपने बॉन्ड अमाउंट जैसे 1 लाख रुपीज आपने मुझे भेजा हुआ है, ये वापस से आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर वापस आप इसको रिवर्स करेंगे ट्रेडर योद्धा के करंट अकाउंट में। ठीक है, ये काम हम स्टाइपेंड मिलने के बाद करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। स्टाइपेंड जब आपका चला जाएगा, ये हम लोग मान के चलिए फ्रॉम 21st of August टू लेटर ऑन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
एंड जब ये हो, रिमेंबर जब आपने बॉन्ड साइन किया होगा तो बॉन्ड फॉर्म पे आपको मेरा अकाउंट दिखा होगा, है ना, दो अकाउंट थे वहां पे, उसमें आपने किसी में से किसी पे भेजा होगा। अब उस चीज को हमें हटा के यहाँ पे अकाउंट जो डिटेल्स हैं ट्रेनिंग फी के नाम पे या कुछ भी जो भी है उसमें, यहाँ पे आपके ट्रेडर योद्धा का डिटेल्स आएगा, जो भी उस अकाउंट नंबर हमें अलॉट हुआ है, जो भी चीजें हैं, करंट अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे ये आएगा। इस पे आप इसको फिर हम लोग फर्दर करके तब फर्दर हम लोग बॉन्ड वाला जो काम है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अड़चन आ गई है। आई हैव दिस गॉट दिस मैसेज टू बी डन फ्रॉम आवर सीए एंड ऑडिटर्स इन वेरी स्ट्रिक्ट मैनर, कि इसको कंप्लायंस हमें रेडी रखना है कि फ्यूचर में नाउ व्हाट इज लाइक दिस, धीरे धीरे जो बेसिकली ट्रेडर योद्धा किधर की तरफ जा रहा है, आप लोग ये सोचते होंगे ना, ट्रेडर योद्धा किधर 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 जा रहा है। ट्रेडर योद्धा जो है, एक तो हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करके अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वी आर गोइंग ऑन लर्निंग पार्ट ऑल्सो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑल। और फिर फर्दर ऑनलाइन क्लासेस, फिर हर स्टेट में एक हाइब्रिड सेंटर खुल जाएगा, लाइक ट्रेडर योद्धा विल बी हैविंग इट्स हाइब्रिड सेंटर, वेयर आप ही में से कुछ लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनको फैकल्टी, एज अ टीचिंग फैकल्टी, हर स्टेट में हाइब्रिड सेंटर होगा लेटर ऑन। ये अभी का टास्क नहीं है, लर्निंग फेज में है हम लोग। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग में से भी जो भी लोग हमारे साथ एडमिशन लेंगे लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जहाँ पे, उनमें से हर महीने जो एक एक बैच स्टार्ट होगा उसमें से दो दो लोगों को हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे, और इस तरीके से हमारी फैकल्टी टीम भी बनेगी। ठीक है, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब उसके नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी नोट्स आर रेडी। और वो नोट्स आपको फिर फर्दर आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उस नोट्स को आप फिर फर्दर एक्सेस करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, आपको फिर फर्दर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वट एवर द थिंग्स आई से, जैसे जो भी पीडीएफ अभी जाए, मैं एक पीडीएफ भेजूंगा आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम ग्रुप में, सब लोग उसको खोल के एक बार देखिएगा। ठीक है, सी दैट पीडीएफ, और उस पीडीएफ में से ही अब उस पीडीएफ का आप प्रिंट ले लेना, उसी प्रिंट पे जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब उसमें बना बना के आप उसको प्रॉपर रख सकते हो। तो ट्रेडर योद्धा इस तरीके से आगे जा रहा है। आप एम्प्लॉय हैं ट्रेडर योद्धा के, इसलिए आपको सारी चीजों की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली हम अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना के वहां ट्रेड करेंगे, और हम लर्निंग की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर वी आर गोइंग टू लर्निंग। और इंडिया में क्योंकि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है, तो ट्रेडर योद्धा सेकंड, मतलब ट्रेडर योद्धा के नाम से ही एक अनदर कंपनी विल बी रजिस्टर्ड इन दुबई। ठीक है, और वहां पे वी विल ट्रेड इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। तो आप लोगों में से जो बेस्ट ट्रेडर्स होंगे फर्दर, उनको दुबई में भी जाके फर्दर वहां से सेटल होके आगे काम करने का मौका मिलेगा। तो सारी चीजें मैं एक साथ नहीं खोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे दिस हैज टू बी डन, है ना। तो अभी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी यू हैव बीन हायर्ड। ठीक है, साइड में प्रॉपर अलग टीम, जो कंटेंट टीम है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग टीम है, जो सिलेबस डिजाइनिंग टीम है, या जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, मतलब अकाउंट्स की टीम है, ये सब धीरे धीरे दे आर गेटिंग रेडी हो ना। तो दिस इज द लेआउट, अल्टीमेटली वी हैव टू बी स्विच्ड इन टू प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन लर्निंग चलेगी अभी नेक्स्ट ईयर तक, उसके बाद वी विल कन्वर्ट इन हाइब्रिड सेंटर। हाइब्रिड सेंटर कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एक बार में 40-50 लोग बैठ के वहां पे आराम से लाइव ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही होगी, लाइव क्लासेस चल रहे होंगे, ठीक है, सेमिनार्स वगैरह जो भी सारी चीजें हैं ये सब चल रही होंगी वहां पे, अपना प्रॉपर कैफेटेरिया वेफेटेरिया सब होगा, सारी चीजें सब कुछ फ्री होगा आपके लिए। आप वहां बैठ के आराम से दिन में, आपको घर पे अगर वो नहीं होता, आप कैफेटेरिया में जाके अपने स्टेट में, अब वो हर जगह तो नहीं खुल सकता, अभी एक सेंटर खुलेगा, वहां पे आप जाके आराम से लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, जो आप चाहें वो सारी चीजें आप वहां पे करेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग इस फॉर्म पे धीरे धीरे जाएंगे। तो आप लोगों में से भी जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे, अल्टीमेटली फिर उनको फैकल्टी भी हम लोग यहीं से उठाएंगे, या फिर जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए अभी जो बैच स्टार्ट होना है 15-20 अगस्त के आसपास से, वहां से भी हर महीने दो दो लोगों को हम ऑनलाइन फैकल्टी के फॉर्म में उठाएंगे। और अल्टीमेटली जो जिस स्टेट का होगा उसको इस स्टेट के हाइब्रिड सेंटर पे फिर उसको वहां का फैकल्टी, या फिर वहां का पूरे जो हाइब्रिड सेंटर है उसका मैनेजर बना के उसको वहां पे डिप्यूट किया जाएगा। तो धीरे धीरे वी विल ट्राई टू ग्रो आवर सेल्फ। पहले वी आर हम अपना कैपिटल बेस बना रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रेडर योद्धा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वहां से फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म बन रहा है ऑलरेडी हमारा। ठीक है, एंड देन दिस विल कन्वर्ट, और फिर आप लोगों में से भी जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे फर्दर, उनको मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में स्विच करूंगा। उनका उनके लिए वीजा, वी विल अप्लाई वीजा, वर्किंग वीजा, देन यू विल हैव योर अकाउंट्स ओपन इन दुबई फर्दर।
ठीक है, वहां पे कंपनी के फर्दर उसमें, एंड फिर आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में भी हमारे लिए बैठ के ट्रेड कर रहे होंगे, हमारे लिए करेंगे तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस इज द लेआउट, ये धीरे धीरे इस पर्पस पे जा रहा है। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम अपने आप लोग को यहाँ देखते हैं। अब आप पूछेंगे सर, लाइक इंडिया में जो ये ट्रेडिंग सेंटर्स या ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह चलती हैं उसके लिए सेबी की क्या गाइडलाइंस है? तो उसके लिए अभी करेंटली सेबी की तरफ से कोई भी, देखिए, अगर आप एक एडवाइजर हैं, मतलब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं या लोगों को फाइनेंशियली रिकमेंड करते हैं कि हाँ आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, उसके लिए आपके पास सेबी निम्स का, NIMS का एक पेपर होता है X15A, X15A, वो क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास 3 to 5 years का इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कहीं पे भी एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप सेबी का हर साल एक एग्जाम होता है RA का, रिसर्च एनालिस्ट का, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप ये फिर फर्दर क्वालिफाइड हैं तब आप सेबी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। आप कभी भी लोगों को गारंटीड रिटर्न्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि हम ये इतना परसेंट देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हाँ, आप लोगों को अपनी एडवाइजरी रिकमेंड कर सकते हैं अगर ये फर्दर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग के लिए, इम्पार्टिंग के लिए अभी तक इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइन कहीं भी नहीं बनी है कि ये इम्पार्ट करे कि हाँ एक ट्रेडर जो इंडिया में लोगों को ट्रेडिंग सिखाएगा उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप PGDCA होने चाहिए या बीटेक होने चाहिए या एमटेक होने चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक 12th क्लास का लड़का भी अगर 6-7 years में अच्छी खासी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ले चुका है तो वो भी एज अ ट्रेडिंग फैकल्टी टीचर बन के काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहीं पे कुछ नहीं। और ये मैंने ऑलरेडी फर्दर ये निम्स का जो पेपर है इसके लिए ऑलरेडी मैंने टेस्ट शेड्यूल की डेट अपने लिए डाल दी है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी चीजें हों वो एकदम लीगल तरीके से, फॉर्मलाइज तरीके से हों। तो मैं किसी और के नाम पे क्यों जाके सेबी का RA लाइसेंस खरीदूं? मैं खुद ही पेपर क्वालिफाई करता हूं। मैं ऑलरेडी 7 years बैंकिंग में सेक्टर में काम कर चुका हूं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी है। देन आई विल अप्लाई फॉर RA, रिसर्च एनालिस्ट सब होना चाहिए अपने पास, ताकि कल को फ्यूचर में हमारे ऊपर कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ट्रेडर योद्धा किस तरीके से आगे जा रहा है इसका मैं एज ए एम्प्लॉय, आप सभी एम्प्लॉय हैं, उसकी व्यू आपको दे रहा हूं। अभी हम अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं। ठीक है, लाइक आप टोटल लोग 148 लोग हैं जिनको ऑलरेडी हायर किया जा चुका है, जो आप अभी हमारे लिए 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आप ही लोगों में से जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे उनको फिर फैकल्टी के लिए भी वी विल हायर, जो हु विल टेक आवर ऑनलाइन क्लासेज। मैं तो वहां रहूंगा ही, साथ साथ आप लोगों में से भी, और जो हम लोग पैरेलली लाइव ट्रेडिंग के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये आप लोग भी जानते हैं, ओपनली टू से एनीवन की वी आर डूइंग लाइव ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया। मतलब आप बिना लाइसेंस रजिस्टर्ड आप कैसे किसी को एडवाइजरी दे सकते हैं? मैं जो बात करूंगा खुल के करूंगा, क्लियर कट करूंगा, ध्यान से समझिए हर चीज को। ठीक है, तो वी आर जस्ट टीचिंग, हम 3 महीने की लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट होंगे। हर महीने में 2 बैच स्टार्ट होना है। तो फ्रॉम अगस्त, अगस्त में एक बैच, फिर सितंबर में एक बैच, अक्टूबर में एक बैच, लाइक दैट 20 इनटेक कैपेसिटी है। इसमें से टॉप 2 लोगों को फिर फर्दर हम लोग एज अ फैकल्टी या फिर फर्दर उनके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको आगे लेके जाएंगे। आप में से सारे लोग बैठ के ट्रेडर योद्धा के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड भी करेंगे, और जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको मैं ऑनलाइन क्लासेज में भी धीरे धीरे लेके आऊंगा। ठीक है, फिर फर्दर जब आफ्टर 1 year और 2 year जब हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हम आपको अक्टूबर तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको अक्टूबर तक ट्रेडर योद्धा की वेबसाइट, इसका ऐप, ठीक है, ये सारी चीजें विल बी देयर, है ना। ऑलरेडी वी हैव गॉट आवर GST नंबर, टैन नंबर ऑलरेडी अप्लाइड है, ये भी आ जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, और फिर इस ईयर के नेक्स्ट एंड तक हम लोग ऑलरेडी अपना सेबी का निम्स पेपर और RA के लिए फर्दर, मतलब मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले वी विल हैव आवर, आई विल हैव पर्सनली आवर RA लाइसेंस। और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट आवर हाइब्रिड सेंटर। ये मेरा एम्बिशियस प्लान है। ठीक है, हाइब्रिड सेंटर एक बार इंडिया में, ये अनटैप्ड लोकेशन है, टोटली अनटैप्ड है। ठीक है, अभी इस पे कहीं किसी का ध्यान नहीं है, और आपको पता होना चाहिए लाइक फ्रॉम 2000 अभी तक 2023 का जो डेटा है, पूरे इंडिया में अभी भी ओनली 14 to 16% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल कंट्री इज ट्रेडिंग, है ना। मतलब सोच लीजिए कितना ह्यूज पोटेंशियल है अभी इस मार्केट में। ठीक है, इफ यू डिजर्व इट, आप भी
शुरू कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। वी विल हैव आवर हाइब्रिड सेंटर्स, धीरे धीरे वी विल स्टार्ट लाइक दिल्ली एक, हरियाणा एक, केरला एक, लाइक दैट। एंड देयर वी विल बी हैविंग लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहाँ पे लोग बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं लाइव। वहाँ पे क्लासेस चल रही होंगी, डेली 3-4 क्लासेस चल रही होंगी, लोग वहाँ पे एडमिशन लेके वहाँ लाइव क्लासेस ले सकते हैं फर्दर, वो सारी चीज़ें, दैट इज द थिंग। एंड फिर हम लोग इसको फिर फर्दर हम लोग यूएई में, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है, कोई भी एक फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है। तो फर्दर ट्रेडर योद्धा के नाम से ही हम लोग यूएई में लाइसेंस के लिए फर्दर अप्लाई करके फिर वहां पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में जाएंगे। उसके लिए भी फिर आप लोगों में से ही चुना जाएगा लोगों को, जो फर्दर दुबई शिफ्ट होके वहां जाके वहां पे वहां हमारे दिए हुए वर्क वीजा पे वहां पे जाके आपका अकाउंट वगैरह प्रॉपर ओपन होके आप हमारे लिए फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। आप कमाओ छापो, 10 5 10 साल हमारे साथ काम करो, अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना लो और अपना CJR CAGR गोल भी अचीव कर लो, मतलब सीमलेस अपॉर्चुनिटीज विथ यू, ठीक है। बस यही है कि किसी का दिमाग इसमें गड़बड़ाए नहीं, है ना, सब आराम से। बट पीछे की कुछ गलतियों से आई हैव लर्नड इट वेरी बिटरली। सो एवरीथिंग विल बी गोइंग एज पर लीगल एंटिटी, हर चीज लीगल ही जाएगी, ठीक है। छुप के कोई काम नहीं करना। हाँ, आपको पता होना चाहिए हम लोग अभी टेलीग्राम पे जो भी टीम्स कॉल वगैरह देती है या फिर ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। बट कौन आएगा फिर हमारे पास, ठीक है। हम अगर जब तक कुछ अच्छा नहीं देंगे लोगों को, कौन आएगा, दुनिया ऐसे ही चलती है, गिव एंड टेक का जमाना है। आपको कुछ मिलेगा तभी आप मेरे पास आओगे ना, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, आपको लैपटॉप मिल रहा है, आपको मोबाइल मिल रहा है, आपको नौकरी मिल रही है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। तो फ्री में थोड़ी आते आप मेरे पास, नहीं आते, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। सो थोड़े इनिशियल फेज में टू बूस्ट आवर सेल्फ्स, कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द लीग जाके आपको काम करना ही पड़ता है, दैट थिंग वी हैव टू डू, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट 3 4 5 ईयर्स का कह लीजिए विजन है ये, इसी विजन पे हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी वाला पार्ट आई होप जुलाई 2024 स्टाइपेंड वाला जो पार्ट है दैट इज टोटली क्लियर फॉर ऑल, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको डेट बता दी है, फर्स्ट जिस पे आपका जुलाई 2024 जाना है, फिर वो बॉन्ड फॉर्मेट रिवर्सल, ठीक है, और फर्दर फिर बॉन्ड साइन, इसी के साथ वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक। जो भी डाउट होगा फिर सेशन के एंड में आप मेरे से उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड थिंग था आपका फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, कि आप हमारे पास एज ए ट्रेडर ट्रेनिंग ऑफिसर सेलेक्टेड हैं, ठीक है। जो सर्टेन आपके टेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होके, दिस इज आई एम ट्राइंग बाय 16 to 17 आपको आपके मेल आईडी पे ये रिसीव हो जाए। दिस हैज टू बी रिसीव्ड ऑन योर मेल आईडी बाय 16 to 17 एनी हाउ, ठीक है। सब कुछ रेडी है। अब एक इस पिछले बार वाली गलती नहीं होगी, सब लोगों को इंडिविजुअली उनके पर्सनल मेल आईडी पे, ट्रेडर योद्धा की मेल आईडी से सबको एक एक करके, अब 164 मेंबर्स आर देयर, तो सबको एक एक मेल डाल के सबके नेम एडिट करके सबको भेजने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सबके लेटर्स रेडी होंगे, फिर सबको स्कैन करके भेजना एंड ऑल। वी आर थिंकिंग कि मेरा एक डिजिटल साइन जनरेट होके और मेल में ही सारे कंटेंट लिख के और आपको मेरा डिजिटल साइन मिलके वहां से वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको पहुंच जाए, आप फर्दर उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास ऑन रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग बाई बेस्ट कि 16 से 17 अगस्त तक सभी लोगों को उनके मेल आईडी पे उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो रिसीव हो जाए, ठीक है। थर्ड जो है आपका बॉन्ड हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो ये चीज दिस विल बी इम्पैक्टेड बिट डिलेड ड्यू टू दिस, क्योंकि अब आपके स्टाइपेंड रिसीव होने के बाद दैट बॉन्ड अमाउंट हैज टू बी रिवर्टेड बैक इन योर अकाउंट, ठीक है। अब ऑलरेडी आप हमारे साथ क्लास कर चुके हैं, हमारे साथ हैं, तो दिस विल बी लाइक अ टेस्ट ऑल्सो, है ना, कि कौन हमारे साथ क्योंकि आपको आपका बॉन्ड अमाउंट मिल गया, आपको आपका स्टाइपेंड 45 के मिल गया, एनी हाउ यू आर इन बेनिफिट, यू हैव गॉट सम गुड नॉलेज। आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, चल अपना पैसा ले निकल, है ना, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। बाय दिस आई विल गेट द फिल्टर आउट, मतलब जो सीरियस एंड बेस्ट हैं वो रुक जाएंगे, जो नहीं है जिनको मतलब नहीं है, जो
मटेरियलिस्टिक व्यू या जैसे भी सोचते हैं, मैं बुरा नहीं कहूंगा, उन्होंने अपने लिए जो भी डिसीजन लिया, जैसे भी लिया, वट एवर दे वांट दे कैन डू, तो इट विल बी अ फिल्टर आउट। यहाँ से भी कुछ लोग ऑटोमेटिकली अपने आप छट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट जमा किया हुआ है, इसलिए उनकी सांस अटकी पड़ी है। ठीक है, मैं जो फैक्ट है वो आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इट विल बी लाइक अ फिल्टर आउट। तो एक बार ये बॉन्ड अमाउंट जो आपने सबमिट किया है 1 लाख रुपीज का, ये वापस आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, मेरे सेविंग अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में, वंस इट इज ट्रांसफर्ड एंड वंस इट इज रिवर्स्ड बैक इन करंट अकाउंट ऑफ ट्रेडर योद्धा, फिर वहां से आपको बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म जैसे पहले हम लिख किया, कुछ नहीं करना है, सब कुछ एज इट इज होगा, बस बॉन्ड फॉर्म पे मेरे अकाउंट्स की जगह ट्रेडर योद्धा का अकाउंट मेंशन होगा, वहां पे आपके साइन बॉन्ड अमाउंट फिल करके फिर उसको वापस भेज देना है, और फिर फर्दर हम लोग उसको नोटराइज करा के, कोर्ट से उसको लीगलाइज करा के, फिर आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, और फिर आपको उसकी हार्ड कॉपी जेरोक्स में, जो ओरिजिनल कॉपी है वो यहाँ रह जाएगी, हार्ड कॉपी आपके पास चली जाएगी। ठीक है, तो दिस विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी शायद 31 ऑफ अगस्त से लेके September 10th तक भी लग सकता है भाई, जो क्लियर कट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना अपनी तरफ से ना आपकी तरफ से, ठीक है, तो जो क्लियर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दिस हैज बीन स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड फ्रॉम आवर सीए एंड ऑडिटर्स। पास्ट में हमसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हुए हैं, क्या करूं, मैं भी पहले नौकरी में ही था, मिडिल क्लास आदमी था। ठीक है, कंपनी खोलना, कंपनी चलाना, लोगों की भलाई करना, ये सारी चीजें मेरे लिए भी बहुत नहीं है, तो मुझे जो जैसे रास्ता समझ में आता गया मैं वैसे करता गया। मुझे हर चीज, इंडिया में हर चीज के लिए एक लॉ है, अब हर चीज का लॉ तो किसी को नहीं पता होता। हाँ, जब गलती हो जाती है फिर उसको फर्दर सुधारने का मौका आपको मिल जाता है। ठीक है, बट अगर आप उस गलती को करने के बाद भी फिर से जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तब तो फिर वो ब्लंडर है ना, फिर वो ब्लंडर नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू दैट ब्लंडर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ऑफिशियल मेल इंटीग्रेशन। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, आप लोगों ने जो अभी फॉर्म फिल किया होगा सैलरी के लिए, उसमें सबकी मेल आईडी आई है, या सबका जो नाम है बेसिकली, जैसे हमारे सामने धवल रूपरेलिया जी हैं, तो धवल आर या रूप ऐसा करके @traderyoddha.org, ये आपकी ऑफिशियल मेल आईडी होगी जो आपके पास आनी है, क्योंकि फिर फर्दर सारे ज्वाइनिंग लिंक्स, सारे सैलरी स्लिप, सारी चीजें फिर इसी चेन में हो जाएंगी। ठीक है, मीटिंग फर्दर अभी ग्रुप में जाता है, ये ग्रुप ग्रुप में जाना बंद हो जाएगा, ग्रुप में सिर्फ आपको नोट्स जाएंगे, ओरिजिनल जो आपके जो क्या बोलते हैं गाइडलाइंस हैं, या फिर आपका जो नोट्स है, या फिर आपके जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, सिर्फ वो जाएंगी। ठीक है, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू मेल ओनली, मेल मेल में ही सारा कुछ फिर चीज़ें हो जाएंगी। आप मेल से ही अपने इस जूम मीटिंग में फर्दर फिर आप लॉग इन करेंगे, आपके पास उसका पास की होगा, आप हर बार जब क्लास होगी तो आपका एक पास की फिक्स होगा, आप उस पास की को डालेंगे, आप ऑटोमेटिकली फिर लॉग इन कर पाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन होना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि 20th ऑफ अगस्त तक सभी लोगों को आप उनका ओरिजिनल ये मिल गया आपको, अगर दिस यू गेट इट। मुझे बहुत लोगों ने मेरी टीम में ये एडवाइस किया कि सर ये ऑफिशियल मेल इंटीग्रेशन जो है ना, ये आप जब फाइनल कंफर्मेशन हो जाए एम्प्लॉयज का तब कीजिए, जब आपके पास फाइनल जो टेस्ट वेस्ट होके जब एम्प्लॉयज आए तब दीजिए, अभी मेल आईडी देना हो, लेकिन आई एम थिंकिंग कि नहीं देते हैं। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सबको अपना मान के काम कर रहा हूँ ना। ठीक है, क्यों रोकना, अगर बाद में आपकी किस्मत में हमारे साथ नहीं रहना लिखा होगा तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है, अभी देते हैं, वी विल ट्राई टू गिव दिस। ठीक है, तो एक बार जब ये बॉन्ड वाला काम कंप्लीट हो जा रहा है, स्टाइपेंड मिलने के बाद आपका जो बॉन्ड का काम कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि मैं आपको मेल आईडी दे दूं और अभी बॉन्ड अमाउंट चला गया, आपका मन बदल गया, नहीं मुझे वापस नहीं ज्वाइन करना है, मुझे मैं अपने 1 लाख के साथ अपने घर पे ही खुश हूं, तो उस केस में तो दिस थिंग विल बी वेस्टेड। ठीक है, तो लेट दिस बॉन्ड अमाउंट थिंग इज डन, देन आफ्टर दैट दिस मेल इंटीग्रेशन विल बी डन, है ना। तो अभी टॉप प्रायोरिटी पे दो चीजें हैं, एक आपका जुलाई 2024 का स्टाइपेंड जाना, और उसके बाद फिर ये बॉन्ड अमाउंट वाला काम जो है वो रिवर्सल वाली चीज जो है उसको कंप्लीट करना। मैंने इसमें एक चीज और चीज स्टार्टिंग में ही बता दी है, जिन जिन जैसे मान लीजिए 80 लोग हैं जो पहले ज्वाइन हुए हैं, उसमें से 5 या 8 10 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 50 के ही दिया था, और फर्दर दे रिक्वेस्टेड कि उनका बाकी जो पैसा है वो उनके बॉन्ड अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाए, सॉरी स्टाइपेंड से या सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाए। तो अगर आपका ये केस है तो उस केस में आपकी जुलाई की जो स्टाइपेंड है वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब आप सबको रिवर्सल के टाइम में सबको अकाउंट में 1 लाख जाएगा,
क्योंकि यही क्राइटेरिया था, दिस वाज द क्राइटेरिया। सो एवरीवन विल गेट 1 लाख इन बैक इन देयर अकाउंट, है ना। चाहे आपने 50 के भेजे, चाहे आपने 1 लाख भेजे। जिन्होंने 1 लाख भेजे उनको ऑलरेडी जुलाई का स्टाइपेंड भी मिल चुका होगा, जिन्होंने 50 के भेजे हैं तो उनका ये स्टाइपेंड, जो स्टाइपेंड वाला पैसा है वो ऐड होकर उनके अकाउंट में 1 लाख जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन इज बैलेंस्ड, सब लोग यहाँ पे फर्दर फिर बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेल आईडी और बॉन्ड वाला जो काम है, ये हम लोग एक बार जब ये रिवर्सल्स हो जाएंगे उसके बाद सारे लोगों का बॉन्ड फॉर्म साइन होके आ जाएगा, तब ये मेल आईडी और ये बॉन्ड अमाउंट वाला काम कर लेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट जो हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट शेड्यूल इज सैटरडे ऑफ एवरी वीक 2 to 5 PM। दिस इज फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट। और सब लोग को इसमें मैंडेटरी कंपलसरी अवेलेबल होना है टेस्ट के लिए। ऑलरेडी वी हैव गॉट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको टेस्ट के लिए लिंक मिल जाएगी, आपको वहां जाके अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर करके उसको ज्वाइन करना है। ओटीपी आएगी, आप लॉगिन करेंगे, वहां पे आपका टेस्ट शेड्यूल मेंशन होगा। वहां पे सारे क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में होंगे। एक दिन टेस्ट से 2-3 दिन पहले मैं आपको उसका पूरा जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है टेस्ट का, ठीक है, कैसे कहाँ लॉग इन करना है, जब आपको कुछ लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, क्या सारी चीजें, एवरीथिंग विल बी मेंशन टू यू। और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देंगे और इंस्टेंटली फिर आपको उस टेस्ट का रिजल्ट मंडे या ट्यूसडे तक आपको आपके ग्रुप में फिर फर्दर किसको कितना स्कोर मिला, टोटल स्कोर कितना था, उसके हिसाब से यू विल गेट योर स्कोर्स। ठीक है, टेस्ट शेड्यूल एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का जो गाइडलाइंस है वो आपको इस वीक में मिल जाएगा। याद रखिए, टेस्ट आर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ऑन दिस सैटरडे I will make all understand that testing platform, जिस प्लेटफॉर्म पे we all are going to give test, उसके प्लेटफॉर्म पे आपको ये बताया जाएगा। अगर टाइमिंग में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है तो अभी जब ये डाउट सेशन क्लियर हो रहा है उसके बाद इफ यू थिंक नहीं आई एम नॉट अवेलेबल या कुछ ऐसी चीज है तो अभी आप डिस्कस कीजिएगा, फिर हम लोग एक कंबाइंड टाइमिंग देख लेंगे या फिर ग्रुप में पोल डाल दूंगा। इस मीटिंग के बाद वी विल हैव अ पोल इन द ग्रुप देयर, यू कैन टेल कौन किस टाइम पे अवेलेबल है। तो मैक्सिमम परसेंटेज जिधर होगा ऑटोमेटिकली टाइमिंग हम लोग उधर चले जाएंगे। ठीक है, वी विल डू दैट। ठीक है, बाकी आपके एम्प्लॉय सर्कुलर एंड गाइडलाइंस वगैरह जो भी हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं, कभी मैसेज के फॉर्म में, कभी उसके फॉर्म में। लीव्स कैसे क्या, ये सारी चीजें सब लोगों को पहले से बॉन्ड फॉर्म में ऑलरेडी टोटली क्लियर है कि साल में कितनी मेरे पास लीव्स हैं, कैसे क्या है। बाकी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कुछ चीजें हैं तो ये टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है, सिलेबस जो है आपका डिटेल्ड, ये डिटेल सिलेबस मैं ऑलरेडी लिख के बता चुका हूं। मतलब एक बार नोट फॉर्म में भी रिकॉर्डिंग में है आपके पास, एक बार वॉइस नोट फॉर्म में भी मतलब रिकॉर्डिंग में है, मीटिंग में ही मैंने बता दिया है कौन कौन सा टॉपिक हम कब कब कैसे कैसे पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ वर्जन आपको बस 1-2 दिन का वेट कीजिए, उसमें आपके पास ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस विल गो ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप ऑटोमेटिकली। आपको फिर ये नोट्स क्या ही देना, सब कुछ तो पता ही है। ठीक है, अभी आपके पास अब नोट्स जाएगी प्रॉपर, यू विल हैव योर ओन नोट्स। ठीक है, प्रॉपर सारे मॉड्यूल्स के जो भी मॉड्यूल्स आप पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर अब नोट्स जाएगा आपको। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये काम भी आपका आसान कर दिया है। आप उसको फिर पढ़िए आराम से, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर 5 पेज 6 पेज 7 पेज का जो भी चीजें हैं वो यू विल गेट एज नोट्स। आप उसको अपने रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए, अपने लर्निंग पर्पसेस के लिए संभाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। तो ये सारी चीजें थी विच आई हैड टू क्लियर विथ यू ऑल। हमको नहीं, मेरे को नहीं लगता, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट आउट। अगर है तो फिर आप अपने अपने सवाल पूछ के इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अब जिनको जो जो मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, हैंड रेज कीजिए, एक एक करके सबका नाम लेता हूँ। वी विल डिस्कस इट एंड फिर इस पे फर्दर कोई डिस्कशन नहीं होगी, सारी चीजें सबके दिमाग में क्लियर रहेंगी तो आराम से हम लोग फिर अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, लाइक दैट। यस देवांशु, बताइए प्लीज टेल। हाँ सर। हाँ सर, बोला था कि आवाज कट रही है वो देवांशु, से मैं पढ़ हुए थे। आवाज कट रही है हाँ सर, देवांशु। मैं बोला था सर, मैं से। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। सर, मैं बोल रहा था हम तो मैं से अपॉइंट हुए थे। तो आप दूसरे ग्रुप से आए हैं ना, उनकी मीटिंग है 9:30 से, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं वहां जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, उसके बाद पूछिएगा फिर। ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके, उसकी मीटिंग अभी 9:30 से है, ये मीटिंग कंक्लूड होने के बाद वो मीटिंग स्टार्ट होगी, उसमें फिर सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, फिर फर्दर आप उसको कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके।
हाँ धीरज, यस बताओ। हेलो सर। हाँ धीरज बताओ। सर एक तो क्लास की क्वेरी थी मेरी। हाँ बताओ ना। तो जो आपने वो बताया था ना, एनएससी में एडी चार्ट देखना, वो हम्म एडवांस डिक्लाइन, हम्म। वो एनएससी की साइड पे लाइव मार्केट मेरे शो नहीं हो रहा है। लाइक जो वो जुलाई एनएससी मंथ की तक का हो रहा साइट है, पे नहीं दिखाई देता, वो ट्रेडर्स कॉकपिट पे दिखाई देता है। ट्रेडर्स को पे भी देखा था, उसमें तो हाँ हाँ उसमें शो हो रहा है। हाँ जो तो एनएस ट्रेडर्स एनएससी कॉक में भी वो आपने। नहीं, एनएससी पे रेशियो दिखाई देगा, चार्ट नहीं दिखाई देगा। इंडिकेटर तो तुमको सिर्फ ट्रेडर्स कॉकपिट वाला ही देते हैं, वो वहां शो होगा। ओके। उसमें जुलाई तक का शो रहा था जैसे चार्ट भी नहीं एनएससी वो में। हाँ तो एक महीने लेट डेटा आता है, मैंने बताया तो था उस दिन क्लास में कि उसका डेटा एक महीने लेट रहता है। हर दिन का जो एडवांस बाय डिक्लाइन का रेशियो है उसका डेटा लेट आता है एक एक महीने। और मैंने ये भी बोला था कि उसको मैं एक्सेल शीट पे फीड करके प्रॉपर उसका चार्ट बना के दिखाऊंगा कि वो क्या कि मार्केट को कैसे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यस कर्व बन यस। रहा है उसमें, वो मैं फर्दर अभी क्लास में उसको लूंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा सा ओके कॉम्प्लेक्स है, मैथमेटिकल भी है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया हुआ है, बट वो भी समझाना है, मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है, ओके और सर। दूसरे डाउट बताओ। और घर में क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन का जो वो होगा हाँ क्राइटेरिया, हाँ वो टेस्ट हाँ, परफॉर्मेंस वाइज ही होगा। टोटली टेस्ट परफॉर्मेंस पे होगा, टोटली ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस। और कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं उसमें। मुझे तुमसे कोई पर्सनल, किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपके टेस्ट के इंटायर स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आप फर्दर क्या है कैसे। ठीक है, आपके पास एनफ ओके अपॉर्चुनिटी होगी 3 महीने में। हर वीक में आपके पास टोटल लाग सपोज करो 4 वीक्स होते हैं, तो 3 महीने में आपके पास, एक महीने में 4 टेस्ट हुए, तो 3 महीने में आपके पास 12 से 15 टेस्ट हैं। 12 to 15 टेस्ट आर देयर टू परफॉर्म, वो आपके ऊपर है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। ओके सर। सर एक ओके रिक्वेस्ट और, थी सर। हाँ हाँ बोलो ना। सर वो रक्षाबंधन पे क्या है ना, आउट ऑफ टाउन जाना हाँ पड़ेगा, तो ये ना सैलरी हाँ से हाँ, पहले ही रक्षाबंधन तक ही। मैंने बोला तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई। 15 छुट्टी है, 16 to 18 तक एनी हाउ इट इज टू बी डन, ये हो जाए। ठीक है, डोंट वरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके सर। हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। यस, शेख रमीज। हाँ शेख रमीज बताना। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरी एक क्वेरी थी कि हम्म अभी हम जो एग्जाम के लिए अटेंड करते हैं ना सर, तो हम्म। एक लाइक जैसे आप हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज से हम्म एग्जाम देना हम्म। पड़ेगा या प्रॉपर इंग्लिश गाइडेंस से ही एग्जाम देना पड़ेगा? तुम अपनी जो शॉर्ट पैराग्राफ क्वेश्चंस होंगे, दोज क्वेश्चंस हाँ विच आर ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ, जहां पे हाँ आपको एनालिसिस लिखना है, हाँ सर। ठीक है, दैट यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। मतलब ओन लैंग्वेज का इन द सेंस, आप अपने मन में जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप उसको हाँ इंग्लिश में सर। कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। नोट्स जैसा हाँ लिखने की सर। जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, नहीं सर, वो ग्रुप में आप एक पीडीएफ डाले थे सर, हम्म ट्रेंड एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोल के, तो उसमें हम्म। कम्प्लीटली प्रॉपर इंग्लिश पैटर्न से था सर, हाँ तो उस पॉइंट तरीके बाय से हम पॉइंट, अपना। वो तो नोट्स के समझाने के लिए है। आप दो ना, मैं अच्छा। समझाऊंगा। मैं एक टेस्ट सैंपल लेके किसमें कैसे क्या आंसर्स लिखने हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक। एवरीथिंग विल ओके। बी देयर, आई विल डिस्कस इट, डोंट वरी। ओके ओके, ठीक है, थैंक बाकी जो भी समझाया उसमें कोई डाउट नहीं है ना। यू। नो 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 प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सही, ओके थैंक्स। ओके। यस सोहेल खान। हेलो सर। सोहेल, यस सोहेल प्लीज टेल। अ, सर एक क्वेरी ये थी कि जब हम्म जैसे आपने अभी बताया कि जैसे फिफ्टी हम्म थाउजेंड रुपीज हम्म जिसने दिए तो उसका स्टाइपेंड कट होके आएगा। हम्म तो उसमें सर ये पॉसिबल है कि अब जैसे कि अभी हम्म 3 मंथ हमने ट्रेनिंग चली, तो जैसे हम हम्म 3 मंथ 45 दे रहे हो, तो अभी हम्म। सर स्टाइपेंड 20 कट करके दे, क्योंकि उससे सर थोड़ी वो हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक साथ में कट हो जाएगा तो सर थोड़ी हम्म। प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, अभी तो बस खाली ये, अभी जी जुलाई 2024 वाला तो नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे लोगों को ₹1 लाख वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट होना है सोहेल। ठीक है, जी सर। तो जैसे तुमने 50 के दिया हुआ है, अभी 45 के इसमें ऑलरेडी ऐड होके तुमको 95 के तो वैसे भी वापस तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जी सर। अभी ये जाएगा, फिर तुम इसको रिवर्स करोगे टोटल, और फिर अगस्त ऑनवर्ड्स फिर जैसे तुम्हारा 45 के है वो टोटल तुम्हारे अकाउंट में जाएगा फिर। समझ ठीक है गए। सर, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा जी। हाँ ये बैलेंस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अभी जी तुम्हारे सर। अकाउंट में रिवर्स होना है ना। तो इसलिए इसमें हम कुछ हम्म। नहीं कर सकते कि क्रेडिट 20 के कर दे, 25 के नेक्स्ट के कर, नहीं कर सकते इस मंथ जी में, क्योंकि जो पैसा है वो टोटल
बैलेंस होके ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट में रिवर्स होगा, और फिर तुम वहां से ट्रेडर योद्धा के करंट अकाउंट में इसको टोटल रिवर्स करोगे 1 लाख बना के। ठीक है। ठीक है सर, अंडरस्टूड लिया। हाँ, फिर और सर अगस्त दूसरा ऑनवर्ड जो देखिए। तुम्हारा फिक्स है जी 45 के, वो तुमको हर महीने मिलता रहेगा। जी सर, दूसरा एक ठीक। क्वेश्चन ये था, वो रमेश भाई ने अभी पूछ लिया वो तो। जैसे हम्म। कि अब कुछ क्वेश्चन है, तो अभी जैसे उसको हम्म प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिख सकते, जैसे कि मतलब राइटिंग हम स्पेलिंग में लिखेंगे इंग्लिश में, जैसे हम्म। व्हाट्सएप मैसेज करते हैं वैसे, मेरा लेकिन मेरा पूरा हिंदी में सुनो लिख सकते सुनो हैं। सुनो 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 सुनो, जो टेस्ट है, मेरा फोकस वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं उसको समझने में है। आपके जी सर। ग्रामेटिकल मिस्टेक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप इंग्लिश में बेस्ट यू सर। को यू लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आर को आर लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप माई को एम मा माई एम आई लिख रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जस्ट जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन होना पूछ चाहिए। रहा हूँ, हाँ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामने वाला उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, मुझे उससे मतलब है। ठीक है। थैंक आप यू सर, एक्सप्लेन थैंक की यू जी। स्पेलिंग EXPLN लिख रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं समझ लूंगा उतना। ठीक है, मेरा मतलब ये है, मुझे ट्रेडिंग में डिग्री थोड़ी चाहिए तुमसे। ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं यहाँ थोड़ी ढूंढने बैठा हूँ। मुझे भाई मेरा जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ाया, आगे जाके मैं इसी में से कुछ बंदों को अगर फॉरेक्स में, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए दुबई भेज रहा हूँ, वहां उनका लाइसेंस करा रहा हूँ, तो मुझे भी अपने लेवल का बंदा चाहिए ना। ठीक है। सही तो बात है सर। जी। जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट मायने रखती है, आपके ग्रामेटिकल एरर, आपके सेंटेंस एरर मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। मेरे लिए मैटर करता है आपका जो एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर रहे नॉलेज हैं, जो जी। भी, हाँ, जो भी आप नॉलेज है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। यस। यस कुमार शाक्या। यस यस प्लीज टेल। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट था, अपन ने हाँ जैसे वो अपनी इक्वल वेटेज वाली जो क्लासेस थी हाँ हाँ उसमें अपन हाँ पेज शीट डाउनलोड करी थी। हाँ हाँ तो सर वो मैं मतलब मैंने जैसे देख रहा था गूगल पे, तो हाँ हाँ अपन ने जो डाउनलोड किया था ना, तो वो हाँ निफ्टी 50 इक्वल वेट की थी। और मैंने हाँ जैसे और गूगल पे सर्च वगैरह किया तो ऐसा पता चला कि निफ्टी हाँ, 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम्म। यही डाउट था, मतलब ये था कि उसमें जो इक्वल वेटेज था, तो हर शेयर हम्म का मतलब पता चला कि निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनी रहती है, तो हम्म उसके अकॉर्डिंग हर मतलब 2% वेटेज रहता है। ओरिजिनल निफ्टी 50 वाला था तो उसमें ना जैसे अलग अलग था कि हम HDFC का निफ्टी 50 को फोकस करेंगे, इक्वल वेटेज वाले को फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ सर वो क्योंकि क्लास। क्योंकि निफ्टी 50 का जो इंडेक्सेशन होता है वो इक्वल वेटेज पे नहीं होता है। निफ्टी 50 के ओरिजिनल जो इंक्लूडेड है, जो स्टॉक लिस्टेड होता है, उसका कितना परसेंट वैल्यू है टोटल निफ्टी 50 के 100% एडिशन में, उस पर हाँ वैल्यू डिपेंड करता है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक वो है। सर क्लास में आपने बताया था, डाउट हो रहा था। हाँ और सर हाँ एक डाउट ये है हाँ कि हाँ जैसे अभी निफ्टी 50 के जो मैं वेटेज निकाल रहा था अलग अलग हाँ स्टॉक के, तो हाँ सर हाँ पे जैसे HDFC को टॉप पे बताते हैं कि हाँ 11% है, कहीं पे हाँ रिलायंस हाँ, को बताते हैं कि 11% पे। तो हम्म। सर उसके लिए कुछ आप पर्सनल मतलब ऐसी कोई वेबसाइट बता दीजिए जहाँ पे आपको मतलब एग्जैक्ट डाटा मिल जाए। वो NSE की साइट पे ही मिलेगा, हर क्वार्टर पे वो चेंज होता रहता है, आपको हर क्वार्टर उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। इसीलिए जो आप डायनामिक नोट्स बनाएंगे उसमें उसको पेंसिल से लिखिएगा, हर बार आपको मिटा मिटा के उसका जो करंट जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हर क्वार्टर में आपको फिर बदलता रहता है, हर क्वार्टर में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके। क्लास से रिलेटेड जो डाउट वाउट है किसी का यार, उसको बाद में पूछ लेना। अभी जो फर्दर इससे जो जितना आपको समझाया इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, परीक्षित चौहान बताइए। बताइए परीक्षित जी। हेलो। हेलो। हाँ परीक्षित जी बताइए। हेलो सर, मैं हेलो। नेटवर्क एरर है शायद। एक काम करना, आप अपना जो सवाल है वो टेलीग्राम पे रिकॉर्ड करके भेज देना, मैं सुन के रिप्लाई कर दूंगा फिर। हेलो। हेलो। हाँ रंजीत जी, टेल। हेलो। हाँ रंजीत जी बताइए। हाँ सर, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बताइए रंजीत जी। माता जी कैसे सर आपकी? अभी ठीक है, स्टेबल है कंडीशन। थैंक यू फॉर आस्किंग, बताइए। सर मेरा ये रिक्वेस्ट था मेरा आपसे हम्म हम्म कि आपने जो एडवांस और डिक्लाइन का चार्ट रेशियो बताया हम्म था,
मैं इसको फॉलो तो कर रहा हूँ, उसमें मालूम भी पड़ रहा है कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है या इंडेक्स किस तरफ जा रहा है। मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, लाइव चार्ट दिखा के रिवाइज कराऊंगा, ठीक ठीक है उसको। बट मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि सिर्फ आप हम्म। चार्ट पे, मतलब चार्ट पे कैसे देखना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं, आप रिकॉर्डिंग को चार्ट मुझे। देखिए, मैं फिर से उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करा दूंगा क्लास में, ठीक है। ओके सर। अभी क्या करेंगे ना, हर वीक में जो भी पढ़ाई हो रही है, इन वट एवर वीक वी आर गोइंग टू स्टडी वट एवर थिंग्स, उस पूरे टॉपिक का एक पोल हो जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक किसको कितना समझ में आया, जिसपे सबसे लेस परसेंटेज होगा उस टॉपिक को वी विल फिर से रिवाइज, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे एंड वी विल रिवाइज इट। ओके ओके सर। ओके, कोई डाउट सर, चार्ट चार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो चार्ट ठीक है, कैसे मैं करें? फिर से उसकी क्लास ले लूंगा कल, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, हाँ सन्नी बताइए, हेलो सन्नी सर। जल्दी बताइए, हाँ जल्दी जल्दी बताइए जी। सर मुझे ये पूछना था कि जो हाँ, टेस्ट होने वाला है वो अपन मोबाइल पे दे सकते हैं क्या सर? नहीं 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 नहीं, वो मोबाइल पे एक्चुअली जाएगा नहीं। आई डोंट हैव लैपटॉप। तो साइबर कैफे में बैठ के दे दीजिएगा। इज इट पॉसिबल सर कि यस यस, व्हाई साइबर नॉट। कैफे? हाँ हाँ, ठीक है सर। लॉग इन करके टेस्ट भी तो देना है, आराम से दे सकते हैं। ठीक है सर। एक्चुअली एक और बात बोलनी थी सर आपको हाँ जी बताइए ना। कि आपने आपने अभी जैसे बोला कि हम्म लोग मेरे पास स्टाइपेंड के लिए सर, हम्म। बट कुछ लोग मेरे जैसे ऐसे भी जॉब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं सर। मतलब मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 4-5 ईयर से काम कर रहा हूँ, अरे नहीं तो सनी, नहीं 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 नहीं, जो ऐसा जिसके कुछ है हक नहीं सर का मतलब। रेन्यूमरेशन है उसको मिलना चाहिए। इट इज़ वेरी मच, वो दुनिया का ये एक वो है, नेचर है, तो वी डोंट हैव टू गो बियॉन्ड इट। एंड आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, दैट इज रियली वेरी वेरी अप्रिशिएबल, बहुत मैटर करता है। एंड डोंट वरी, सब ठीक है, सब अच्छे से चलेगा, ठीक है। ओके ठीक है सर, इतना ही डाउट था। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सन्नी। हाँ हरीश वैश्य जी, हरीश जी। हेलो। हाँ जी हेलो। बताइए, जी जी बताइए। सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बताइए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था क्राफ्ट के हम्म रिगार्डिंग। उसमें हम्म क्या आपने जो एडी रेशियो सिखाया था, तो हम्म। उसमें वो चार्ट पे है ना, थोड़ा डिले चल रहा है 5 मिनट जितना। तो उस पे कुछ लाइव चार्ट दे सके, ऐसा कुछ वेबसाइट पर? ना ना, ये आपने शायद ट्रेडर्स कॉकपिट का जो है ना वो लिया होगा, मतलब फ्री सब्सक्रिप्शन लिया होगा, ठीक है। अभी उन लोगों हाँ, ने फ्री क्या ही किया है ना, अभी तो। हाँ अभी उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन में लाइव फीडिंग देते हैं, वो आजकल हर चैनल का वो हो गया है ना, ठीक है। जो पेड अच्छा। सब्सक्रिप्शन है उनका, जो लोगों ने लिया हुआ है 1 ईयर प्लान ऐसा कुछ, तो हाँ हाँ। उनको लाइव फीड जाता है। और जिनके पास फ्री सर्विस है उनको 5 मिनट या 2 मिनट का डिले जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैंने अभी ऐसा चेक नहीं अच्छा। किया, लेकिन उसको देख लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं सर, वो थोड़ा डिले आ रहा है, इसलिए मैंने बस खाली चलिए मैं देख क्वेश्चन लूंगा, पूछ लिया और उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे है ना। अच्छा, ओके। बस और सर सीख लीजिए दूसरा एक उसको थोड़ा काम कैसे करता है, हाँ। हाँ जी बताइए। हाँ सर, आज आज ही मैंने मार्क किया, नोटिस किया उसको निफ्टी में, कि जैसे हम्म। नीचे एडी का रेशियो जैसे नीचे जा रहा था ना, हाँ वैसे ही वो निफ्टी भी निफ्टी नीचे आया थोड़ा होगा। डाउन। हाँ। मतलब ये पहली बार सीखा है, अच्छा है सीखने के लिए बहुत सर। कुछ सीखने को मिलेगा, अभी टेंशन मत लीजिए। हाँ सर। और दूसरा ठीक सर, है, थोड़ा वो हाँ रिक्वेस्ट था, वो अपना जो हाँ स्टाइपेंड का अमाउंट है वो थोड़ा 50,000 जिसने दिया हुआ है, उसका थोड़ा हाँ। एडजस्ट हो जाए वैसा। नहीं नहीं, वो मैंने समझाया ना, अभी उसने क्वेश्चन पूछा तो था शोएब मेनन ने, मैंने बोल दिया है, अभी क्योंकि वो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में रिवर्स होना है, ठीक है। तो अच्छा। उसमें एडजस्ट या डिडक्ट जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी जैसे आपने 50 के मान लीजिए दिया हुआ है, और अभी आपका जुलाई हाँ का स्टाइपेंड 45 के, और मई का मान लीजिए उसमें 5 के, और मतलब टोटल 100 के हो गया, ठीक है। ये हाँ 100 हाँ। के अभी वापस आपको रिवर्स होगा आपके अकाउंट में, ठीक है। वहां से ओके ये वापस आप इसको ट्रेडर योद्धा के अकाउंट में अभी भेजेंगे, समझ गए। ओके ओके। करंट अकाउंट में, अभी आपने मेरे सेविंग अकाउंट में भेजा हुआ है, दैट इज लीगली नॉट करेक्ट, मतलब ये इसको सही करना है। तो वहां से फिर आपको अगस्त ऑनवर्ड्स आपका जो पैसा है ऑटोमेटिकली 45 के आपको अकाउंट में चला जाएगा। अभी तो ये बैलेंस हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, अगर आपको नहीं भी जा रहा है तो आपका 50 के यहाँ ऐड होके तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिवर्स हो रहा है 20th अगस्त के बाद भी, ठीक है। ये ओके चीज हो रही है इसमें, ओके सर। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक। ठीक है ठीक है, ओके, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। वीरेंद्र तनवर जी बताइए। हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग सर, कैसे हैं जी, आप? गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। सर गुड है सर, होप सर फैमिली इज गुड। ओके बताइए, चलिए। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाँ रिगार्डिंग कि बेसिकली जो टेस्ट शेड्यूल है
फेवरेबल अगर संडे वाले दिन रहे तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो जो जॉब करते हैं जो लोग ना, तो मैं भी उसके यही लिए। सोच रहा था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सैटरडे हो या संडे हो। तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, आपके ग्रुप में पॉल हो जाएगा अभी इस पे भी, कल कल तक, ठीक है। राइट सर। तो मैक्सिमम, अगर मुझे भी यही लगता है कि 70-80% लोग इसको संडे ही चुनेंगे, क्योंकि जो लोग वर्किंग है वो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, सैटरडे वो बैठ के रिवीजन चाहेंगे और संडे को टेस्ट देना चाहेंगे, ठीक है। सर बेसिकली टाइम फ्री रहेगा, माइंड फ्री रहेगा, तो तभी हाँ, मैं टेस्ट में समझ गया, 100% मैं दे मैं पाएगा। समझ गया, मैं इसको कंसिडर करूंगा पॉजिटिव वे में। मैं भी संडे ही लेके चल रहा हूँ, बट टीम रिकमेंड कर रही थी सैटरडे रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को छुट्टी चाहिए होती है ना। अब सैटरडे संडे हो जाएगा तो उनको भी बैठ के इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। हर कोई अपनी राइट बेनिफिट सर। सोचता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने यही प्रपोज किया है कि मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो वर्किंग है, तो मंडे टू बिल्कुल सर। फ्राइडे वो वर्क करेंगे, सैटरडे को वो बैठ के रिवाइज करेंगे, संडे बैठ के टेस्ट देंगे, लाइक दैट वी आर राइट। थिंकिंग, ठीक राइट, है। मतलब बेस्ट इज संडे इज बेस्ट फॉर द ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, वी विल कंसिडर इट, सर, वी विल सर डू इट। सेकंड क्वेश्चन एक और था कि मैक्सिमम टाइम जो हमारा ट्रेडिंग का भी रहेगा, जैसे आपने हाँ, प्रीवियसली हाँ, वीडियो में बताया कि दिवाली हाँ, तक आपका ये प्लान हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, बिकॉज हाँ, जो हाँ, लोग हाँ, अभी रिजाइन पे हैं, रिजाइन करने हाँ, वाले हैं हाँ, प्रीवियस हाँ, जॉब से, तो हम्म, वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। तो सर मैं भी हम्म। जानना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग कब तक रहेगा मैक्सिमम, ताकि हम अपना रिजाइन का प्लान कर सकें। मैं खुद बता दूंगा कि सब लोग, जो भी लोग हैं जिनका 2 महीने 3 महीने का नोटिस पीरियड है, वो लोग स्टार्ट कर दो उसको सर्व करना। एक बार मुझे मेरे सिलेबस के मिड तक पहुंच जाने दीजिए, फिर वी विल ओके। कैलकुलेट कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मैं मेंस अभी में भी हवा में, वेट 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 मैं करें अभी, अभी। हाँ, मैं अभी एक बार मिड में पहुंच जाने दीजिए मेरे सिलेबस को। मैं अभी हवा राइट में सर। सबको बोल दूं सब रिजाइन कर दो बैठ जाओ, नहीं, ये काम नहीं करूंगा। आप जहां हैं राइट जैसे हैं सर। उसको कंटिन्यू कीजिए एक बार, क्योंकि ओके। ऑलरेडी अगर आप क्लास नहीं भी कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग तो आपको एकदम A to Z मिल रही है, कोई डिडक्शन नहीं है बिल्कुल। उसमें, ठीक है। बिल्कुल तो सर। एक बार मेरे को जब लग जाएगा मिड में पहुंच के कि हाँ मुझे अब और इतने दिन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से मैं सब लोगों को बोल दूंगा कि आप लोग जहां जहां जैसे जैसे हैं अपने नोटिस पीरियड को सर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इट विल बी लाइक राइट दैट, सर। ठीक है। और सर नोटिस पीरियड देखिए, एक चीज मैं और क्लियर कट बोलूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन ओवरऑल टेस्ट के बाद ही होना है। अब मान लीजिए उन्होंने रिजाइन कर दिया और पता चला यहाँ से भी डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक बिल्कुल है। सर, बस वही तो पॉइंट मैं, क्लियर सर हाँ, करना है। तो मैं ये चीज करना करूंगा, अभी जब तक आपके फाइनल टेस्ट का इवेल्युएशन हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, आप रिजाइन नहीं करेंगे, ओके। राइट सर। ठीक है। नो वन विल इन केस, रिजाइन। इन हाँ, केस सर कोई पर्सन अगर इन केस आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, और आप राइट सर। फर्दर हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर जो भी आपकी कंपनी में 1 महीने 2 महीने का नोटिस पीरियड है, उसको सर्व करने के लिए हमारे पास से भी आपको टाइम मिलेगा, डोंट वरी, राइट सर। राइट राइट राइट। ठीक है। बस यही हमारे जानना था पास सर से भी मुझे आपको तो। नहीं, नहीं, मिलेगा, टाइम मिलेगा उसके लिए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। ओके, थैंक यू। चलिए, सब लोगों के डाउट तो अभी ले नहीं पाऊंगा, आई होप मैक्सिमम लोगों के डाउट क्लियर हो गए। जिनका इनका जो भी डाउट है और फर्दर, बस टेलीग्राम पे क्वेरी रिकॉर्ड करके इसको फिर फर्दर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी आज का दिन तो हमारा इसी में सारा चला गया है। अब कल से फिर फर्दर वी विल स्टार्ट आवर क्लासेज। हमारे जो क्लासेज हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 1 जो स्टार्ट होना है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई होप मैंने जो भी समझाया है वो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। एंड आपकी इन केस कोई क्वेरी बच जा रही है, कोई चीज़ है, तो रेगुलर क्लास टाइम में तो मैं नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए वी विल कीप फ्राइडे, है ना, कि फ्राइडे के दिन जिसकी जो क्वेरी है वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाए। और इन केस आपको कुछ पूछना है, वो किसी और ने पूछ लिया और वो सॉल्व हो गया, तो फिर दोबारा आप उसको पूछ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। फिर आपको लगता है कि छोटी मोटी आपकी कोई क्वेरी है, डायरेक्टली टेलीग्राम पे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, टीम सुन लेगी, मैं सुन लूंगा उसको, फिर फर्दर वी विल रिप्लाई, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, फिर फर्दर कल से अगेन बैक टू आवर टाइम 7:30 PM वाला, 7:30 to 9 PM वाला, इसी पे हम लोग अब कंटिन्यू चलेंगे एंड वी विल गो ऑन अकॉर्डिंग टू दिस सेशन, ठीक है। चलिए, एंडिंग दिस सेशन नाउ, अगेन वी विल स्टार्ट टुमारो, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल टू यू इन द नाइट ओनली। बाय, टेक केयर, चलिए, गुड नाइट।